بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو اردو ناول۔ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور نئی ویڈیو کے نوٹیفیکیشن کے لیے بیل آئیکن کو دبا کر تمام نوٹیفیکیشنز آن کر لیں۔ شکریہ۔ میں نے دیکھا کہ ہماری اور خاص کر گرڈ اور ایسلوپوگاس کی سج دھج دیکھ کر مقدس بوڑھا بھونکا رہ گیا۔ وہ مروب بھی نظر آ رہا تھا۔ اس کا لباس بھی ہمارے اس پہلے ملاقاتی جیسا تھا۔ فرق تھا تو صرف اس قدر کہ اس کی قمیض سفید تھی اور اس کے کوروں پر سرخ گوٹ ٹکی ہوئی تھی۔ اس کا تہمند ہمارے پہلے ملاقاتی جیسا ہی تھا اور ایک ہاتھ میں کوہنی سے اوپر اور دائیں پیر کے گھٹنے سے نیچے ویسے ہی سونے کے کڑے یا کنگن چڑھے ہوئے تھے۔ کشتی کھینے والے صرف تہمند باندھے ہوئے تھے اور ان کا بالائی جسم عریاں تھا۔ گڈ نے مقدس بوڑھے کو قدرے اترا کر سلام کیا اور نہایت عمدہ انگریزی میں اس کی خیریت دریافت کی اور موسم کا حال بھی پوچھ لیا۔ بوڑھے نے اس کا جواب یوں دیا کہ اپنے دائیں ہاتھ کی پہلی دونوں انگلیاں جوڑ کر اپنے ہونٹوں پر انگلی رکھ دی۔ کچھ دیر تک رکھے رہا۔ یہ گویا ان کا سلام تھا۔ اس کے بعد اس نے اشارے کر کے کچھ کہا جسے ہم سمجھ نہ سکے۔ ہم نے نفی میں سر ہلایا۔ کچھ دیر تک ہم ایک دوسرے کے سامنے بت بنے کھڑے رہے۔ اچانک مجھے خیال آیا کہ ہم یا کم از کم میں بھوکا ہوں، لگے ہاتھوں کیوں نہ اپنی ضرورت کو بوڑھے کے سامنے پیش کر دیا جائے۔ چنانچہ میں نے اپنا مطلب بوڑھے کو سمجھانے کی کوشش کی۔ میں ہوا میں لقمہ بنا کر ہاتھ کو منہ تک لے جاتا اور خالی خالی منہ چلانے لگتا۔ ساتھ ہی ساتھ میں اپنے پیٹ پر بھی ہاتھ پھیرتا جا رہا تھا۔ جب میں نے کئی مرتبہ اس عمل کو دہرایا تو بوڑھا میرے اشاروں کا مطلب جلد ہی سمجھ گیا۔ اس نے بڑی تمکنت سے اپنا سر ہلا کر کنارے کی طرف اشارہ کیا کہ ہم اپنا ڈونگا اس رسے سے باندھ لیں۔ ہم نے ایسا ہی کیا۔ پتواروں والی کشتی ہمارے ڈونگے کو اپنے پیچھے کھینچتے ہوئے تیزی سے کنارے یا دہن دریا کی طرف چلی۔ دوسری کشتیاں ہمارے پیچھے تھیں۔ پورے 20 منٹ بھی نہ گزرے تھے کہ ہم انوکھی طرز کی بندرگاہ میں داخل ہوئے۔ دراصل وہ 24 تختوں کا ایک طویل سٹیج سا تھا جسے سہولت کی خاطر بندرگاہ بنا لیا گیا تھا۔ یہاں بے شمار آدمی ہماری آمد کے منتظر تھے۔ معلوم ہوتا تھا پورے شہر کی آبادی شوق دید میں بندرگاہ پر جمع ہو گئی تھی۔ تمام لوگ سفید فام تھے۔ مردوں کی نسبت عورتوں کا رنگ زیادہ کھلتا ہوا تھا۔ کالی تو ایک طرف ہمیں ایک بھی سانولی عورت نظر نہ آئی۔ بندرگاہ سے کچھ آگے ندی نہر کی صورت میں ایک طرف کو ذرا سی گھوم گئی تھی۔ جب ہمارا ڈونگا اس موڑ پر پہنچا تو دفتن ہماری آنکھیں چندھیا گئیں۔ کنارے پر نہایت ہی خوبصورت اور بارونق شہر تھا۔ یوں لگتا تھا جیسے چراغ کے جن نے زمین کے ایک ٹکڑے کو کہیں سے اٹھا کر افریقہ کے اس دور افتادہ حصے میں رکھ دیا ہے۔ مارے حیرت اور خوشی کے میرے منہ سے چیخ نکل گئی۔ اس شہر کا نام جیسا کہ ہمیں بعد میں معلوم ہوا ایمولسس تھا، تاریک شہر۔ کنارے سے کوئی 500 گز دور مضبوط پتھروں کی بنی ہوئی 200 فٹ بلند ایک دیوار یا فصیل کھڑی ہوئی تھی۔ کسی زمانے میں یہ دیوار دریا کا پانی روکنے کے لیے بنائی گئی ہوگی۔ رفتہ رفتہ دریا پیچھے کی طرف کھسک گیا اور دیوار اور دریا کے بیچ میں خشکی کا ایک ٹکڑا نمودار ہو گیا۔ خشکی کا یہی ٹکڑا اب ایک قدرتی بندرگاہ کا کام دے رہا تھا۔ اس دیوار کے اوپر پتھروں کی ایک کالی شان عمارت قائم تھی جو 3 طرف پھیلتی چلی گئی تھی اور سامنے کی طرف یعنی دریا کے رخ کھلا میدان چھوڑ دیا گیا تھا۔ اس عمارت تک پہنچنے کے لیے دیوار میں ایک چھوٹا سا دروازہ بنایا گیا تھا اور اس دروازے کے پاس ایک اور فصیل قائم تھی۔ وہ عمارت شاہی محل تھا اور محل کے پچھواڑے سے ڈھلان تک شہر پھیلتا چلا گیا تھا۔ محل کے پچھلے حصے سے زمین بتدریج بلند ہوتی جا رہی تھی اور جہاں اس کی بلندی ختم ہوئی تھی وہاں سفید سنگ مرمر کی ایک اور عمارت قائم تھی۔ اسی عمارت کا سنہرا گنبد ہمیں دور سے نظر آتا تھا۔ اس ایک عمارت کے علاوہ شہر کی تمام عمارتیں سرخ پتھر کی تھیں۔ تمام مکانات ایک ہی ڈھنگ سے بنائے گئے تھے۔ مکانات سڑک کے دونوں کناروں پر ایک ہی قطار میں دور تک چلے گئے تھے۔ نہ کوئی مکان آگے تھا اور نہ پیچھے۔ تمام مکانات ایک منزلہ تھے اور ہر مکان کے چاروں طرف چھوٹا سا باغ لگا ہوا تھا۔ محل کے پچھواڑے ہی ایک بے حد فراخ راستہ شروع ہوتا تھا جو تقریباً 1.5 میل کے بعد ڈھلوان کی چوٹی پر بنی ہوئی سفید سنگ مرمر اور سنہری گیند کی عالیشان عمارت کے احاطے میں پہنچ کر ختم ہو جاتا تھا۔ لیکن ہمارے سامنے میلوسس کے طرہ امتیاز اور عجوبہ روزگار محل کا وہ عظیم و شان زینہ تھا جس کے حسن اور عظمت نے ہمیں دم بخود کر دیا۔ ایک بے حد وسیع و عریض زینہ ہے جس کی لمبائی ایک بنگلے کے کھمبے تک 65 فٹ ہے، یعنی ایک سیڑھی کی لمبائی 65 فٹ ہوگی۔ سیڑھیوں کے 2 سلسلے یک کے بعد دیگرے چلے گئے ہیں، یعنی 2 حصے ہیں اس زینے کے، اور ہر حصے میں 8 انچ موٹی اور 3 فٹ چوڑی 120 سیڑھیاں ہیں۔ زینے کے ان دونوں حصوں کو ایک طویل و عریض چبوترا جدا کرتا ہے۔ پہلا زینہ
उस चबूतरे तक जाकर ख़त्म हो जाता है और दूसरा शुरू होता है। ये चबूतरा गोया दम लेने की जगह है। जाहिर है कि आप जब 120 सीढ़ियाँ तय करेंगे तो आपकी सांस फूल जाएगी, लिहाजा आप इस चबूतरे पर आराम फरमाकर दूसरा जीना चढ़ना शुरू कीजिए। ये अजीमुशान जीना शाही महल की फसील से शुरू होकर नहर तक जाता है। ये जीना फ़न तामीर का एक ऐसा आला नमूना है कि मेलोसस का हर बाशिंदा उस पर बजा तौर पर फ़ख्र कर सकता है। ये जीना एक ताज है जो मेलोसस के सर पर धरा हुआ है। हमें बाद में मालूम हुआ कि ज़माने कदीम में इस जीना को 4 मरतबा बनाने की कोशिश की गई और चारों मरतबा ये काम अधूरा ही रहा। हमारे वहाँ पहुँचने से 300 साल पहले ये जीना निस्फ के करीब बन चुका था। इस काम को पाया तकमील तक पहुँचाने की किसी में हिम्मत न थी। आखिरकार एक नौजवान मेमार ने, जिसका नाम रेदमास था, इस काम को पूरा करने का बेड़ा उठाया और ये शर्त रखी कि अगर वो मुकर्रर मुद्दत में जीना मुकम्मल करने में नाकाम रहे तो उसे जीने पर से नीचे की तरफ फेंक कर हलाक कर दिया जाए, लेकिन अगर कामयाब हो जाए तो उसकी शादी बादशाह की लड़की से कर दी जाए। बादशाह वक्त ने दीदमास की इस शर्त को बखुशी मंजूर कर लिया और उसे 5 साल का वक्त दिया गया। ज़रूरत के मुताबिक पत्थर और औजार फराहम किए गए और रीदमास ने अपना काम शुरू किया और उसने 3 मरतबा मेहराब बनाई और तीनों बार वो ढाई गई। रीदमास मायूस हो गया। उसकी तमाम उमंगें और उम्मीदें खाक में मिल गईं। जिस रोज़ तीसरी बार मेहराब गिरी, उसी रात नौजवान मेहमार ने पुख्ता इरादा कर लिया कि वो खुदकुशी कर लेगा। कहते हैं कि उसी रात एक खूबसूरत औरत रीदमास को ख्वाब में नजर आई। उस औरत ने झुककर रीदमास की पेशानी पर अपना नरम और नाजुक हाथ रख दिया और नौजवान मेहमार ने ख्वाब ही में जीना मुकम्मल कर लिया। उसे ये भी पता चल गया कि मेहराब गिरने की वजह क्या है। मेलोसस के बाशिंदों का कहना है कि रीदमास ने मेहराब गिरने की वजह किसी को नहीं बताई। सुबह उठकर उसने असर नौ जीने का काम शुरू किया और आखिरकार वो उस खातून की दुआ से जो उसके ख्वाब में आई थी जीना बनाने में कामयाब हो गया। 5वें साल के आखिरी दिन बादशाह ने अपनी बेटी की शादी उससे कर दी और रीदमास अपनी बीवी के हाथ में हाथ डाले उस अजीमुशान जीने को तय करता हुआ महल में चला गया। बादशाह की कोई नरीना औलाद न थी, चुनाचे उसके इंतकाल के बाद वही मेहमान नौजवान ताजो तख्त का वारिस हुआ और ज़मींदी ख़ानदान को अपने खुदादाद काबिलियत और हिम्मत से अजीमुशान जीने का यादगार तमगा दे गया। जीना इस कदर मजबूत है कि सदियों तक उसका एक पत्थर भी अपनी जगह से हिल नहीं सकता। हाँ, अगर कोई खौफनाक ज़ल्ज़ला उसे तबाह कर दे तो और बात है। अपने इस लाफानी कारनामे की यादगार के तौर पर रीदमास ने उस फरिश्ता खातून का मुजस्मा तराशा। मुजस्मा यूँ है कि रीदमास सो रहा है और खातून झुककर उसकी पेशानी को छू रही है। इस मुजस्मे को उसने महल के बड़े कमरे में नस्ब कर दिया जो आज तक वहीं मौजूद है। तो ये है मेलोसस का यादगार जीना और ऐसा शहर था वो। पतवारों वाली कश्ती हमारे डोंगे को खींचती हुई जीने के कदमों में ले गई। बूढ़ा गुरु रामेश शान से कश्ती से उतरा और जीने पर जा खड़ा हुआ और इशारे से हमें भी उतर आने को कहा। हम मारे भूख के बेहाल हो रहे थे और अगर ना भी होते तो बूढ़े के हुक्म की तामील करने के अलावा कोई चारा भी तो ना था। चुनाचे हम भी अपने डोंगे में से उतर आए। बूढ़े ने अपने होंठों पर उंगलियां रखकर हम में से हर एक को सलाम किया। सबसे आखिर में वो औरत जिसे हमने आप भी घोड़े से बचाया था डोंगे से उतरी। उसका साथी हजूम में खड़ा उसका मुंतजिर था। वो आगे बढ़ा लेकिन औरत ने उसकी तरफ कोई तवज्जो ना दी। उसने मेरा हाथ उठाकर अपने होंठों से लगा लिया, मतलब ये कि वो हमारा शुक्रिया अदा कर रही थी। हमारा खौफ उसके दिल से ज़ाइल हो चुका था और उसे जाने की कोई जल्दी ना थी। मेरे बाद शायद वो गुड का हाथ चूमती, लेकिन बीच में उसका साथी टपक पड़ा और उसका हाथ पकड़कर खींचता हुआ हजूम में गायब हो गया। गुड की हालत काबिल दीद थी। वो अंदर ही अंदर पेचोताब खा रहा था। उसका बस चलता तो वो उस नालायक मर्द को कच्चा चबा लेता। हमारे मुख्तसर से साजो सामान को उन लोगों ने जो पतवारों वाली कश्ती खे रहे थे उठाया और एक तरफ चले। मुकद्दस बूढ़े राहबर ने इशारे से हमें इत्मीनान दिलाया कि हमारा सामान महफूज रहेगा। उस बूढ़े ने हमें अपने पीछे आने के लिए इशारा किया और उस छोटे से मकान की तरफ जो सराय या मेहमान खाना मालूम होता था चल दिया। वो हमें लिए एक वसी कमरे में पहुंचा जिसके बीच में एक लंबी सी चौबी मेज़ रखी हुई थी और उस पर लकड़ी की रुकाबियों में खाना चुना हुआ था। हम समझ गए कि यह इंतज़ाम ख़ास हमारे लिए ही किया गया है। बूढ़े ने मेज़ के सामने पड़ी हुई बेंच के सामने इशारा किया कि बैठ जाओ। हम दूसरे इशारे का इंतज़ार किए बगैर नतीदों की तरह खाने पर पिल पड़े। बकरी का भुना हुआ गोश्त किसी दरख्त के बड़े बड़े खुशबूदार पत्तों पर रखा हुआ था। उन पत्तों की भीनी भीनी खुशबू गोश्त में भी बस गई थी। सब्जियों में कद्दू की किस्म की कोई चीज़ थी। रोटियां बेहद मोटी मोटी लंबूतरी थी। सुरख शराब जो चरमी सुराहियों में भरी हुई थी और जाम सींगों के थे। हमने खूब डटकर खाया और जब मेज़ पर से उठे तो अपने जिस्म में नई कुव्वत महसूस कर रहे थे।
जिन मुश्किलात से गुजर कर हम आ रहे थे, उसके बाद हमें 2 चीज़ों की सख्त ज़रूरत थी, खाना और आराम। जब तक हम खाने की मेज़ पर जमे रहे, 2 नहायत खूबसूरत लड़कियां हमारी खिदमत में मौजूद रहीं। उनका लिबास भी वैसा ही, सफ़ेद पेटीकोट और उस पर भूरे रंग का चोगा या साड़ी। दायां बाजू और एक छाती मुल्क की रस्म के मुताबिक बिल्कुल उरियां थी। बाद में मालूम हुआ कि ये उनका कौमी लिबास है। लिबास का रंग पहनने वाले की हैसियत और उसकी हालत जाहिर करता है। मसलन अगर पेटीकोट सफ़ेद होता तो पहनने वाली कंवारी होती, अगर उसकी कोरों पर सुर्ख गोट लगी हुई होती तो पहनने वाली शादीशुदा और पहली बीवी होती, लेकिन अगर गोट गुलाबी होती तो वो दूसरी या तीसरी बीवी होती, और अगर पहनने वाली बेवा होती तो गोट स्याह होती, वगैरह वगैरह। इसी तरह से पेटीकोट के ऊपर जो चोगा या साड़ी पहनी जाती थी, जिसे मैलौस में कार्फ कहते हैं, उसके भी मुख्तलिफ रंगों से पहनने वाली का ख़ानदान और उसका दौलत व सरवत ज़ाहिर होती थी। मर्दों के लिबास में भी यही मुख्तलिफ रंग मुख्तलिफ चीज़ों की तरफ इशारा करते। मर्द अपनी हैसियत के मुताबिक दाएं बाजू में कोहनी से कुछ ऊपर और बाएं पाँव में घुटने से नीचे सोने के कड़ी या कंगन पहनते थे। आला ख़ानदानी लोग या फिर सरकारी अहदेदार गर्दनों में सोने का तौक डाले रखते थे। उन लोगों की गर्दनों में भी जो एक ख़ास मुकाम रखते थे, तौक पड़ा रहता था। हमारे मुकद्दस राहबर की गर्दन में भी ऐसा ही तौक पड़ा हुआ था। जब हम खाने पर झुके हुए थे, मुकद्दस बूढ़ा एक कोने में खड़ा उकाबी नज़रों से हमें देख रहा था। बार बार उसकी नज़रें हमारी बंदूकों पर जा पड़तीं और उसके चेहरे से खौफ और इस्तेजाब टपकने लगता। हम खाने से फारिग हुए तो हमारे सामने आया और बड़ी इनकिसारी से गुड के सामने झुक गया। गुड की भड़कती वर्दी के बायस वो गुड को हमारी पार्टी का अफसर समझे हुए था। उसने हमें अपने पीछे आने के लिए कहा और कमरे से निकलकर अजीमुशान जीने के कदमों में जा खड़ा हुआ। हम भी उसके साथ ही वहाँ पहुँचे। जीने के दाएं बाएं संगे मरमर के 2 नहायत ही मुहीब शेर खड़े गोया जीने की हिफाजत कर रहे थे। हम आर्ट के साला नमूने को हैरत और दिलचस्पी से देखते रहे। शेरों के चेहरों से खशूनत के आसार हवीदा थे और बिफर कर अपने पिछले पैरों पर खड़े हुए थे। अजीब तर बात यह थी कि दोनों मुजस्मों में से किसी एक में भी कहीं कोई जोड़ नज़र नहीं आ रहा था। ये मुजस्मे भी अजीमुशान जीने के बनाने वाले नौजवान मेमार रीद मास ने ही तराशे थे। बाद में हमें उसके फ़न के और कई नमूने देखने को मिले और मैं बिला झिझक कह सकता हूँ कि उस जैसा संग तराश और बुत साज आज तक तो दुनिया के किसी हिस्से में पैदा हुआ नहीं। हम अपने दिल में रीद मास के लिए एहतराम का जज्बा लिए अजीमुशान जीने पर चढ़ने लगे। एस्लोपोगास जो किसी चीज़ से मरूब होना और उसकी तारीफ़ करना जानता ही ना था, उस जीने को देखकर हैरान रह गया और अपने मखसूस अंदाज में सिर्फ इतना कहा, यह काम किसी इंसान का नहीं हो सकता। अल्फोंसे के बेहिस दिल पर फ़न तामीर के साला नमूने का कोई असर नहीं हुआ। पहला जीना तय करके हम चबूतरे पर पहुंच गए। वहाँ खड़े होकर हमने चारों तरफ नज़र दौड़ाई तो दूर दूर तक सरसब्ज़ो शादाब खित्ता फैला हुआ नज़र आया। सामने वो तालाब था जिस पर हम ज़ेरे ज़मीन नदी से निकल आए थे, लेकिन दाएं तरफ 3 छोटे छोटे रास्ते थे। उनमें से 2 रास्ते महल के गिर्द बनी हुई फसील की गलियों में पहुंचते थे। ये गलियां फसील के अंदर अंदर घूमकर महल के पिछवाड़े बाजारों में पहुंचती थीं। ये रास्ते आम लोगों की आमदरफ्त के लिए थे। जहां से शुरू होते थे वहां कांसी के मजबूत कवाड़ लगे हुए थे। हमें बताया गया कि चंद खुफिया किलों को दबाने से रास्ता इस तरह से नीचे झुक जाता है कि फिर कोई भी शख्स इसे अबूर करके शहर पर हमला नहीं कर सकता। जहां तीसरा दरवाज़ा था उसके दूसरी तरफ संगे स्याह का एक छोटा सा जीना था जिसमें सिर्फ 10 सीढ़ियाँ थीं। ये जीना दरवाजे से महल की दीवार तक जाता था। जहाँ ये छोटा जीना ख़त्म होता था वहाँ भी एक बड़ा सा दरवाज़ा था। महल की दीवार भी अनोखी थी। समझ में नहीं आता कि मैं जो फ़न तामीर की अलिफ बे से भी वाकिफ़ नहीं, हर चीज़ को किस तरह से हूबहू बयान करूँ। बस इतना कह देना काफ़ी होगा कि दीवार बाहर की तरफ से सूदखोर की तोन की तरह गोल उभरी हुई थी और कोई शख्स कोशिश के बावजूद उस पर नहीं चढ़ सकता था। हमारा मुकद्दस राहबर हमें लिए हुए महल के उस दरवाजे पर पहुंचा। चौड़ा चिकला दरवाज़ा जिस पर कांसी के पत्थर चढ़े हुए थे बंद था, लेकिन हमारे पहुंचते ही वो खोल दिया गया और पहरेदारों ने कड़क कर कुछ पूछा। पहरेदारों के एक एक हाथ में एक एक निहायत नाजुक और खूबसूरत नेज़ा था जिसके फल तिकोने थे और पुष्ट पर आबी घोड़े की खाल की ढालें पड़ी हुई थीं। उनके दूसरे हाथ में तलवार थी जो जल्द ही हमारी तवज्जो की मरकज़ बन गई। इसमें और उस तलवार में जिसे हमने मिस्टर मैकेंजी के पास देखा था सरमुँह फरकना था, यानी मरहूम आवारागर्द यकीनन इस अनजान मुल्क तक आया था। हमारे राहबर ने कुछ कहा और पहरेदारों ने अपने नेज़े उल्टे करके उसके तिकोने फल फर्श पर खटाक की हल्की सी आवाज़ के साथ टेक दिए। गोया अब हमें अंदर दाखिल होने की इजाज़त थी। हम दरवाजे में से गुजरकर सहन में दाखिल हुए। ये सहन 40 मुरब्बा गज था
और इसमें जगह जगह फूलों के तख्ते लगाए गए थे जिनकी खुशबू से फिजा महक रही थी। फूल मेरे लिए बिल्कुल नए थे। आज तक मैंने किसी जगह इस किस्म के फूल नहीं देखे। फूलों के तख्तों के बीच में एक छोटा सा रास्ता या पगडंडी गुजरती थी जिस पर बजाय बजरी के तालाब से हासिल की हुई सीपियां कूटकर बिछाई गई थीं। उस पगडंडी से गुजरकर हम एक और मेहराबी दरवाजे के सामने जा खड़े हुए। उस दरवाजे पर कबाड़ों की जगह रेशमी पर्दे लटक रहे थे। उसके बाद हमें एक और तंग दरवाजे से गुजरना पड़ा और अब हम महल के सबसे ज़्यादा वसीओरीज कमरे में खड़े हुए थे। ये कमरा अपनी वसअत के साथ ही अपनी शान व शौकत और आराइश व ज़ेबाइश के एतबार से भी काबिल दीद था। इस कमरे का तूल 150 फुट और अर्ज 80 फुट होगा। इसकी छत निहायत मजबूत 24 दरवाज़ों पर टिकी हुई थी। कमरे के इंतहाई सिरे पर दीवार से 20 फुट दूर स्याह संगे मरमर के सतून अपने कंधों पर छत की 24 मेहराबों को उठाए थे। इसी कमरे में एक तरफ वो मुजस्मा था जिसे अजीमो शान जीने के खालिक रीद मास ने तराशा था। बाद में हमें इस मुजस्मे को इत्मीनान से देखने का मौका मिला। हम उसका हुस्न और फनकार की कारीगरी देखकर मबहूत रह गए। मुजस्मा यूं था कि एक बारोब शख्स एक नफीस काउच पर लेटा हुआ है। उसका एक हाथ नीचे लटक रहा है और दूसरा सरहाने धरा है। वो उस हाथ पर अपना सर रखे सो रहा था और उसके घुंघराले बाल सुनहरे धरे हुए बाजू पर बिखरे हुए हैं और एक हसीन व जमील औरत उस ख्वाबीदा शख्स पर झुकी उसकी पेशानी को अपने दस्ते नाजुक से छू रही है। उस खातून के चेहरे से ऐसी मल्लाहत और ऐसी शान टपक रही है कि उसे अल्फाज में बयान करना मुश्किल है। उसके नाजुक होंठों पर मलकूती तबस्सुम नाच रहा है। चेहरा निहायत पुरजलाल और बादाम जैसी आंखें महवे ख्वाब शख्स के चेहरे पर गड़ी हुई हैं। लेकिन मुजस्मा साज का कमाल तो ये था कि उसने महवे ख्वाब शख्स के तमाम दिली जज्बात पत्थरों में सिमो दिए थे। उसकी बेकुली, दिमागी खलफिशार, थकन, परेशानी, अज़्म, बुलंद नजरी, ये उस संगनुमा बुत के चेहरे से आया थे और मालूम होता था जैसे वो कुछ ही देर बाद नींद से चौंक कर उठेगा और उससे गुफ्तगू करने लगेगा। और यही बुत साज की सबसे बड़ी कामयाबी थी। हर सतून के बीच में जो खाली जगह थी वहाँ भी मुजस्मे रखे हुए थे। कई मुजस्मे महज तखयली थे, कई पुराने बादशाहों, शहजादों और शहजादियों के। एक तरफ नामवर मलकाओं के मुजस्मे रखे हुए थे। ये तमाम मुजस्मे हर चंद के अपने तौर पर काफ़ी हसीन थे, लेकिन फिर भी उस मुजस्मे की बराबरी नहीं कर सकते थे जिसे रीद मास ने तराशा था। उसकी तो शान ही निराली थी। कमरे के बीचों बीच एक स्याह चकोर पत्थर रखा हुआ था। ये पत्थर, जैसा कि हमें बाद में मालूम हुआ, बेहद मुकद्दस गर्दाना जाता था। जब कोई नया बादशाह तख्त नशीन होता तो वो इस पत्थर के सामने दो जानू होकर अपने दोनों हाथ पत्थर पर टेक देता और फिर सूरज देवता को हाजिर नाजिर जानकर हलफ उठाता कि वो मरते दम तक रियाया का ख्याल रखेगा, मुल्क के रस्म रिवाज पर कारबंद रहेगा और अपने अजदाद के नक्शे कदम पर चलेगा। ये पत्थर बेहद कदीम था और इसके चारों पहलुओं पर कुछ निशानात से बने हुए थे। हेनरी का कहना है कि ये निशानात इस बात का पता देते हैं कि ये किसी ज़माने में बर्फ़ानी चट्टान के आहनी जबड़ों में फंसा हुआ होगा, फिर किसी जल्जले ने इसे बर्फ़ानी चट्टानों से उखाड़कर बाहर फेंक दिया। मुमकिन है हेनरी का कहना सही हो, लेकिन मैलोसिस के बाशिंदे उस पत्थर के बारे में अजीबोगरीब रवायात रखते थे। उनका कहना है कि यह पत्थर दरअसल सूरज से गिरा है या सूरज देवता ने उन्हें अपनी निशानी के तौर पर अनायत किया है। उसका कहना है कि जब तक पत्थर इसी तरह से कायम है, हुकूमत उनकी ही रहेगी, लेकिन जब यह पत्थर टूट जाएगा या तोड़ दिया जाएगा तो उनकी हुकूमत पर जवाल आ जाएगा और कोई गैर मुल्की बादशाह उन पर हुकूमत करेगा। पत्थर चूंकि बेहद मजबूत था, इसलिए जब भी कोई नया बादशाह तख्त नशीन होता तो इस तरफ से तो मुतमईन रहता कि कम अज़ कम उसके दौरे हुकूमत में पत्थर के टूटने का कोई इम्कान नहीं, इसलिए वो मैलोसस का आखिरी ताजदार हो ही नहीं सकता। इस इत्मीनान और दिलजमई से सदियों से हर शहजादा अपने वालिद के तख्त पर कदम रखता आया था। कमरे के एक सिरे पर एक शाहनशीन पर दो तख्त पास पास रखे हुए थे। तख्त जहाज़ी कुर्सियों जैसे थे और खालिस सोने के। उनकी नशिस्त नरम नरम तकियों से ढकी हुई थी, लेकिन उनकी पुश्त खुली थी और उस पर सूरज की तस्वीर बनी हुई थी जो अपनी सुनहरी शुआएं चारों तरफ बखेर रहा था। कमरे की दीवारों में बहुत ऊपर छत के करीब छोटी छोटी खिड़कियां थीं जिन्हें रोशनदान कहना मुनासिब होगा। ये रोशनदान शीशों से बेनियाज थे। मैलोसिस में कोई शीशे के नाम से भी वाकिफ ना था। इन तंग रोशनदानों के सबब कमरे में हल्की हल्की रोशनी फैली हुई थी जिसने उनकी फ़िज़ा को निहायत पुरस्कार बना दिया था। ये था उस कमरे का सरसरी सा खाका, लेकिन इतना अर्ज कर दूं कि ये तमाम तफसीलात मैं उसी वक्त नहीं जान सका। बाद में मैंने जब उस कमरे का बगौर मुआयना किया तो ये तमाम बातें मालूम हुई।
जब हम उस बूढ़े राहबर के साथ उस कमरे में दाखिल हुए तो लोग शाहनशीन के सामने जमा हो रहे थे, लेकिन जो लोग के ओहदेदार या बासर थे वो तख्तों के दाएं बाएं कितार अंदर कितार रखी हुई कुर्सियों पर बैठे हुए थे। उनके ओहदे या नस्ब के मुताबिक उनके चोगे की धारियों पर मुख्तलिफ रंगों की गोट टिकी हुई थी। हर अमीर की कुर्सी के पीछे उसके मुलाजिम और बॉडीगार्ड खड़े हुए थे। तख्त के दाएं बाएं और सबसे अलग थलग मुख्तलिफ किस्म के 6 अशखास रौनक अफरोज थे। बजाय चौगे के उन्होंने सफ़ेद अबाएं ज़ेब तन कर रखी थीं जो उनके टखनों तक आती थीं। उनके सीनों पर सुनहरे सूरज बने हुए थे, बिल्कुल ऐसे ही जैसे कि तख्तों के पुश्त पर थे। अबाओं में बोताम नहीं थे, बल्कि कमर के इर्द गिर्द सोने की निहायत बारीक जंजीर लिपटी हुई थी। जंजीर के चारों तरफ सोने के बैजवी टुकड़े लटक रहे थे। उन टुकड़ों पर फलिस बने हुए थे। जब वो लोग चलते तो ये टुकड़े आपस में टकरा कर बज उठते और उनके फलिस यूं जगमगाते जैसे उनसे रोशनी फूट रही हो। ये लोग पक्की हुई उम्रों के थे, चेहरे बारोब और करख्त, और घनी दाढ़ियों ने उनके चेहरों को और भी बारोब बना दिया था। ये परोहतों का मुकद्दस गिरोह था। इस गिरोह का एक शख्स खास तौर से हमारी तवज्जो का मरकज़ बना हुआ था। उसकी उम्र 80 साल से तजावुज़ कर चुकी थी। गैर मामूली तौर पर बुलंद कामत और बर्फ़ जैसी सफ़ेद दाढ़ी जो उसके सीने पर पंखे की तरह फैली हुई थी। उसके खदोखाल निहायत मुतवाज़न और कदरे तीखे थे और उसकी भूरी भूरी आंखों में राख तले दबी हुई चिंगारियों की सी चमक थी। पहली ही नज़र में वो शख्स मुझे बेहद ज़िद्दी और शैतान सा मालूम हुआ। उसका चेहरा उसकी सख्त दिली और बदबातनी की गुमाजी कर रहा था। उसके दूसरे साथियों के सर खुले हुए थे, लेकिन वो अपने सर पर कारचोबी टोपी पहने हुए थे। उसकी इस खसूसियत से मैंने समझ लिया कि वो मेलोसिस में कोई ख़ास दर्जा रखता है। मेरा ये अंदाज़ा सही साबित हुआ। वो इस मुमलिकत का पेशवाए आज़म था जिसे मेलोसिस में रैगून कहते हैं। दफतन दाएं तरफ से बिगल की आवाज़ आई और फिर फ़ौरन ही बाएं तरफ से भी बिगल की आवाज़ थमते ही एक शख्स अपने हाथ में हाथी दांत का हसा लिए नमूदार हुआ और दाएं तरफ के तख्त के सामने खड़े होकर बुलंद आवाज़ में कुछ कहने लगा। उसने आखिर में अल्फाज नलिप्था कहा। उसने 3 बार यही अल्फाज दोहराए जिनके आखिर में नलिप्था आता था। वो खामोश हो गया तो एक और शख्स ऐसा ही हसा लिए बिल्कुल बाएं तरफ से नमूदार हुआ और उस तरफ के तख्त के सामने खड़े होकर वही अल्फाज कहता रहा जो दाएं तरफ वाले खड़े हुए शख्स ने कहे थे। फ़र्क सिर्फ इतना था कि उसकी तकरीर बजाय नलिप्ता के लफ्ज़ सोराइसिस पर ख़त्म हुई। वह शख्स खामोश हुआ तो मुसल्लह सिपाहियों का एक गिरोह दाएं तरफ से और एक बाएं तरफ से नमूदार हुआ। वो खामोशी से दोनों तख्तों के पुश्त पर मुअद्दब खड़ा हो गया। सिपाहियों ने अपने नेज़ों को उठाकर उनके फल फरश पर टिका दिए। एक बार फिर दाएं बाएं से बिगल चिल्ला उठे और अभी उनकी आवाज़ फिजा में तैर ही रही थी कि कनीज़ों के झुरमट दाएं बाएं से नमूदार हुए। उनके बीच में ज़ोविंदी की मलकाएँ निहायत शान और तमक्कनत से चली आ रही थीं। मैंने अपनी इस तवील उम्र में हसीन तरीन औरतें देखी हैं और अब उम्र की उस मंजिल को पहुंच चुका हूं कि औरत का हुस्न मेरे दिल पर असरअंदाज नहीं हो सकता। लेकिन मैं उन दोनों बहनों का हुस्न बयान करना चाहता हूं तो अल्फाज मेरा साथ नहीं देते। दोनों जवानी की उमंगों से भरपूर थीं। दोनों एक साथ पैदा हुई थीं और उनकी उम्र 25 साल की होगी, तवीलुल कामत और नहायत सडौल जिस्म। लेकिन यहाँ आकर दोनों बहनों की शबाहत में फ़र्क आ जाता था। एक यानी नलिप्था का हुस्न आंखों में चकाचौंध पैदा कर देता। ज़ुविंदी मुल्क के रिवाज के मुताबिक उसका एक मरमरी बाजू और एक छाती उरियाँ थी। उसके उरियाँ बाजू और छाती की बेदाग सफ़ेदी उसके सफ़ेद कार्फ या चौगे की सफ़ेदी पर गालिब आ गई थी। उसका चेहरा और उसके नकूश इतने पुरकशिश थे कि मुमकिन नहीं कि कोई उसे एक बार देखे और भुला दे। उसके बाल क्या थे, यूँ मालूम होता था जैसे कुदरत ने उसके नाजुक सर पर सुनहरी रेशम का ताज रख दिया हो। उन सुनहरी लटों के नीचे कमान जैसी भवें और उनके नीचे पहाड़ी झील जैसी नीली नीली आंखें। आंखों से बैक वक्त जवानी की तड़प और शौकी के साथ साथ शाहाना वकार और तमक्कनत के जज्बात टपक रहे थे। दहन कदरे तंग और होंठ इश्क के देवता क्यूपिड की कमान जैसे उसके चेहरे से नरम गरम शुआएं सी फूट रही थीं और उन शुआओं में रहमदिली और सादा लोही के जज्बात थे। उसका हुस्न जेवरात से बेनियाज था, अलबत्ता उसकी सुराहीदार गर्दन, मरमरी बाजू और एक पैर में मुल्क की रस्म के मुताबिक सांप की शक्ल के सोने के ठोस कड़े पड़े हुए थे। बगले के परों जैसा सफ़ेद लिबास आला कीमती कपड़े से बनाया गया था। चौगा पर सोने के बारीक बारीक तारों से बेल बूटे बनाए गए थे और जगह जगह सूरज की शक्लें बनी हुई थीं। उसकी तमाम बहन सोराइसिस हुस्न जमाल में कदरें मुख्तलिफ थी।
उसके बाल अपनी बहन के सुनहरी बालों के खिलाफ घोर काले थे। चेहरे की रंगत भी नलिप्ता जैसी साफ न थी और होंठ भरे भरे थे। हसास चेहरे से वो बेहद जिद्दी और शफाक मालूम होती थी। उसके चेहरे के सर्द नकूश ने ख्वामख्वाह मुझे ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि अगर किसी वजह से इसके पुरसुकून दिल में हलचल मच गई तो पता नहीं कौन से बुरे नताइज पैदा होंगे। सोराइसिस मुझे ऐसी गंभीर समंदर जैसी हसीन मालूम हुई जो तूफ़ानी मौसमों में भी पुरसुकून रहता है, लेकिन उसके सीने में तूफ़ान उबलते रहते हैं। ज़रा सा इशारा पाकर ये तूफ़ान सतह आप पर आ जाते हैं और फिर बस्तियों और आबादियों को सफ़े हस्ती से यूं मिटा देते हैं कि उनका नामो निशान तक कोई नहीं पा सकता। सोराइसिस के दिल में भी खुदा जाने कौन से तूफ़ान पोशीदा थे जो पता नहीं कब उभर आएं और तबाही मचा दें। उसके खदोखाल अपने बहन के से ही मुनासिब और मौजूद थे और लिबास भी अपनी बहन जैसा ही था। दोनों बहनें कमरे में दाखिल हुईं तो हर शख्स उनके सामने निहायत अदब से झुक गया और वो दोनों एक शाने बेनियाजी से गर्दनें उठाए और मगरूराना कदम उठाती अपने अपने तख्त की तरफ बढ़ीं। उनकी शानो शौकत, वैश्याना सज धज, आन बान और शाहाना अजमत और साथ ही बेपनाह हुस्न दिल पर एक खास असर करता था। उनके एक अदना इशारे पर हर शख्स कट मरने को तैयार हो जाता और उनका तबस्सुम बूढ़ी रगों में भी जवान खून दौड़ा सकता था। लेकिन वो औरत पहले थी और मलका बाद में, चुनाचे शौक़ तहकीक से उनकी तबीयत भी खाली ना थी। जब वो अपने तख्त के करीब पहुंच गईं तो मैंने देखा कि बेख्तियार उनकी निगाहें हमारी तरफ उठ गईं। सबसे पहले उनकी निगाहें मुझ पर पड़ी, लेकिन मुझ बूढ़े में कोई खास बात ना पाकर दूसरी तरफ मुड़ गईं। मेरे करीब ही एस्लोपोगास खड़ा हुआ था। उसका डील डॉल और अनोखा ढंग देखकर मलकाओं की निगाहें कुछ देर तक दियो कामत जुल्लू का जायजा लेती रहीं और उनमें हैरानी की चमक पैदा हो गई। एस्लोपोगास ने अपना कुल्हाड़ा उठाकर बहनों को सलाम किया। दूसरे ही लम्हा वो गुड की तरफ मुतवज्जा थीं। कुछ देर तक वो उसके फूकुल भड़क लिबास पर मंडलाती रहीं और फिर उस तरफ घूम गईं जहां हेनरी अपने तमाम मर्दाना हुस्न के साथ सीना ताने खड़ा था। रोशनदानों से आती हुई रोशनी हेनरी के सुनहरी बालों और घनी दाढ़ी पर रक्स कर रही थी। हेनरी ने नजरें उठाकर मलकाओं की तरफ देखा। नलिप्ता और हेनरी की आंखें चार हुईं और मैंने देखा कि नलिप्ता के चेहरे पर रंग दौड़ गया। उसके रुखसार गुलाब से खिल उठे और उसकी निगाहें लड़खड़ाकर नीचे झुक गईं। पलट कर देखा तो हेनरी का चेहरा जर्द था और उसके दिल में मची हुई हलचल का राज फाश कर रहा था। नलिप्ता की नज़रें फिर उठीं जैसे वो उसके इख्तियार में ना हो। उसने फिर हेनरी की तरफ देखा और उसके नाजुक होंठों के कोने कांपने लगे। हेनरी के कदम लड़खड़ा गए और उस पर गशी सी तारी होने लगी, लेकिन उसने अपने आप को जल्द संभाल लिया। ओ खुदा, मैंने सोचा, अब ये औरतें स्टेज पर आई हैं तो पता नहीं ड्रामा कौन सा गैर मुतवक्का मंजर पेश करेगा। मैंने ठंडी सांस ली। मैं जानता हूँ कि औरत का हुस्न क्या कुछ तूफान उठा सकता है। औरत का हुस्न एक बिजली है, तबाहकुन, और एक लुटेरा है, गारत कर। और ये बिजली हेनरी पर गिरी थी और लुटेरे ने उसके दिल पर डाका डाला था। इस अरसे में मलकाएं अपने अपने तख्त पर रौनक अफरोज हो चुकी थीं। बिगल फिर बजे और दरबारी अपनी अपनी जगह पर बैठ गए। मलका सोराइसिस ने इशारे से हमें भी बैठ जाने को कहा। अभी हम बैठने भी ना पाए थे कि हजूम में से हमारा बूढ़ा राहबर उस औरत के शौहर का, जिसे हमने आबी घोड़ों से बचाया था, हाथ पकड़े नमूदार हुआ और शह नशीन के साथ जा खड़ा हुआ। सलाम करने के बाद उसने अपनी रिपोर्ट पेश की और निहायत तफसील से हमारे बारे में बताया कि हम कहाँ पाए गए और वो किस तरह से हमें यहाँ तक लाया। बूढ़ा हाथ हिला हिलाकर तकरीर कर रहा था और उसके एक एक लफ्ज़ पर दरबारियों के मुंह हैरत से खुले जाते थे। उनके चेहरे पर एक रंग आता था और एक जाता था। कभी तो उनके चेहरे से खौफ व हरास जाहिर होते और कभी हैरत व इस्तजाब। ये बात उनकी समझ में किसी तरह से नहीं आ रही थी कि हम तालाब पर कहाँ से आ गए, आसमान से टपक पड़े या पाताल से निकल आए। आखिरकार वो ये सोचने पर मजबूर हो गए कि हम ज़रूर किसी लाफानी कुव्वत के मजहर या उसके मालिक हैं, वरना आज तक कोई अजनबी तालाब की सतह पर यूं डोंगे में तैरता हुआ नहीं पाया गया। अब बूढ़े की तकरीर का अंदाज बदला। बजाय नरम अल्फाज के उसके मुंह से नहायत भारी भरकम अल्फाज लुढ़कने लगे और उसके जोशो खरोश में इजाफा हुआ। हर मिनट बाद वो उस औरत से पूछता और वह उस बात में सर हिला देती। मैंने अंदाज से समझ लिया कि वो आबी घोड़ों का जिक्र कर रहा था। मैंने देखा कि परोहतों के चेहरे से खुशूनत टपक रही थी। बूढ़े के एक लफ्ज़ पर उनका गम और गुस्सा बढ़ता जा रहा था और बार बार उनके मुंह से खौफ व हैरत के कलमात निकल जाते थे। परोहतों की यह हालत देखकर मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि आबी घोड़ों का मामला बहुत संगीन है
اور انہیں اپنی گولیوں کا نشانہ بنا کر ہم نے نہایت سنگین جرم کا ارتکاب کیا ہے۔ دونوں بہنیں بھی حیرت سے بوڑھے کی تقریر سن رہی تھیں، اور جب بوڑھے نے ہماری گود میں دھری ہوئی بندوقوں کی طرف، جو ان کے خیال سے تباہی و بربادی کی دیویاں تھیں، اشارہ کیا تو دربار میں جتنے بھی لوگ تھے سب کے چہرے زرد ہو گئے۔ زویندی لوگ سورج کی پوجا کرتے ہیں اور دریائی گھوڑا ان کے نزدیک بے حد مقدس اور متبرک جانور تسلیم کیا جاتا ہے۔ یہ بات نہ تھی کہ وہ اس جانور کو مارتے نہ تھے، ایک خاص تہوار پر وہ اس جانور کو سورج دیوتا پر بھینٹ چڑھاتے تھے۔ اس مقصد کے تحت وہ لاتعداد آبی گھوڑوں کو تالاب میں پالتے، اور چونکہ یہ جانور صرف سورج دیوتا کے لیے ہی وقف ہوتا تھا، اس لیے نہایت مقدس سمجھا جاتا تھا۔ چند پیروہت صرف اس کی خدمت پر مامور تھے کہ وہ ان مقدس جانوروں کو ہر صبح کھانا کھلائیں اور ان کی دیکھ بھال کرتے رہیں۔ بدقسمتی سے ہم نے انہیں مقدس جانوروں کی جان لی تھی۔ جب ہم نے ان پر گولی چلائی تھی تو ان کی انسانوں سے مانوسیت ایک عجب معلوم ہوئی تھی، اور یہ بات میرے لیے ایک معمہ بنی ہوئی تھی جو اب جا کر حل ہوا۔ میلوسس کے باشندوں پر روب گانٹھنے کے سلسلے میں ہم سے ایک فاش غلطی بلکہ نہایت سنگین جرم سرزد ہو گیا تھا، اور گڈ کے مشورے پر عمل کر کے ہم ایک نئی مصیبت میں پھنس گئے تھے۔ میں گڈ کو الزام نہیں دیتا، کیونکہ ہم سب بھی بلا سوچے سمجھے میلوسس کے باشندوں کو خوفزدہ کرنا چاہتے تھے، لیکن اس حقیقت سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ اگر گڈ ہماری توجہ آبی گھوڑوں کی طرف مبذول کرا کے ان پر گولی چلانے کی تجویز نہ پیش کرتا تو شاید ہم انہیں کبھی نشانہ نہ بناتے اور متعدد خطرات سے بچ جاتے۔ ہمارا راہبر جب تمام واقعات بیان کر چکا تو پیشوا اعظم ریگون آگے بڑھا۔ اس کے چہرے سے خباثت ٹپک رہی تھی اور منہ سے کف جاری تھا۔ اس نے ایک ولولہ انگیز تقریر کی۔ تقریر کے دوران وہ بار بار ہماری طرف دیکھتا اور اس کی آنکھوں سے شعلے ٹپکتے۔ اس کی آنکھوں کی چمک مجھے ذرا بھی نہ بھائی، نہایت نفرت انگیز تھی وہ، اور اگر اس وقت کہیں میں یہ جان لیتا کہ وہ کیا کہہ رہا ہے تو میری یہ نفرت انتہا کو پہنچ جاتی۔ وہ مطالبہ کر رہا تھا کہ مرحوم آبی گھوڑوں کے عوض ہم کو سورج دیوتا پر بھینٹ چڑھا دیا جائے، اور اس مقصد کے لیے اسی وقت ہم سب کو اس کے سپرد کر دیا جائے۔ ریگون اپنی تقریر ختم کر چکا تو سورائسس نے نہایت شیریں آواز میں اس سے چند سوالات پوچھے، جن کے جوابات شاید اس نے نہایت مناسب و موزوں دیے، کیونکہ سورائسس خاموش ہو گئی۔ پھر نلپتا نے ٹھہری ہوئی آواز میں کہا، پتہ نہیں وہ کیا کچھ کہتی رہی، لیکن اتنا ضرور معلوم ہوا کہ وہ پیشوا اعظم سے ہماری جان بخشی کے لیے کہہ رہی تھی۔ لیکن ریگون ٹس سے مس نہ ہوا، اس کا چہرہ اور بھی کرخت ہو گیا۔ آخر نلپتا نے طویل القامت اور بوڑھے سیاہ داڑھی والے شخص کو مخاطب کیا اور ہماری جان بخشی کی درخواست کی۔ اس کا نام ہمیں بعد میں معلوم ہوا، ناستا تھا، اور وہ زویندی کا امیر ترین شخص اور ایک طرح سے خود مختار نواب تھا۔ جب ہینری اور نلپتا کی آنکھیں چار ہوئیں اور ملکہ سرخ ہو گئی تھی تو اس شخص ناستا نے بھی ملکہ کی اس حالت کو دیکھ لیا تھا۔ اس وقت وہ ہمارے اضطراب اور غصے کے ہونٹ چبا رہا تھا اور بار بار اس کا ہاتھ تلوار کے قبضے پر جا پڑتا تھا۔ ناستا ملکہ سے شادی کا خواہش مند تھا اور نلپتا کے حضور اپنی درخواست بھی پیش کر چکا تھا۔ حالات جب ایسے تھے تو ملکہ کی یہ سخت غلطی تھی کہ وہ ناستا سے مدد کی طالب ہوئی۔ اس کے دل میں تو حسد و رقابت کی آگ سلگ رہی تھی، اور یہ تو اس کی دلی خواہش تھی کہ اس کا رقیب یعنی ہینری اس کے راستے سے ہٹ جائے۔ پھر بھلا وہ ہماری سفارش کرنے کو کیوں رضامند ہوتا؟ اس نے دھیمی مگر گمبھیر آواز میں الفاظ چبا چبا کر ریگون کے مطالبے کی تائید کی۔ ناستا جب ریگون کی تائید کر رہا تھا تو سورائسس اپنی کوہنی زانو پر ٹیکے اور ہتھیلی کے کٹورے میں اپنی ٹھوڑی رکھے اس کی طرف یوں دیکھ رہی تھی جیسے اس کے باطن کا جائزہ لے رہی ہو۔ اس کے ہونٹوں پر ملکوتی تبسم ناچ رہا تھا، لیکن نلپتا مارے غصے کے بے قابو ہوئی جا رہی تھی۔ اس کے رخسار انگاروں کی طرح دہک رہے تھے اور آنکھوں سے شعلے پھوٹ رہے تھے۔ اس نے ریگون کی طرف دیکھ کر کچھ کہا اور وہ سینے پر ہاتھ رکھ کر ملکہ کے سامنے جھک گیا اور پھر اپنی جگہ پر بیٹھ گیا۔ اب نلپتا نے کچھ اشارہ کیا اور بگل بج اٹھے۔ بگل کی آواز کے ساتھ ہی ہر شخص سوائے ہمارے اور ان سپاہیوں کے جنہیں ملکہ نے روک لیا تھا جانے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا۔ جب کمرے میں سوائے ہمارے کوئی نہ رہا تو نلپتا آگے کی طرف جھک گئی اور مسکراتے ہوئے کچھ اشاروں اور کچھ الفاظ کے ذریعے ہمیں سمجھایا کہ وہ یہ جاننے کے لیے بے چین ہے کہ ہم کون ہیں اور کہاں سے آ گئے۔ ہم سوچ رہے تھے کہ اسے سمجھایا کیسے جائے۔ یکلخت مجھے ایک تدبیر سوجی۔ میری جیب میں ڈائری اور ایک پینسل پڑی ہوئی تھی۔ میں نے یہ دونوں چیزیں برآمد کی اور ڈائری کے ایک صفحہ پر زمین دوز ندی اور تالاب کا ایک بے ڈھنگا خاکہ بنایا اور شاہ نشین کے قریب جا کر ڈائری نلپتا کے ہاتھ میں دے دی۔ نلپتا بڑی زیرک تھی اور میرا مطلب فوراً سمجھ گئی
और खुशी और हैरत से अपने जानू पर हाथ मारा और वो तख्त से उतरकर सोराइसिस के करीब जा खड़ी हुई और वो डायरी उसके सामने पेश की। वो भी मेरा मतलब बखूबी समझ गई। मेरे हाथ से पेंसिल लेकर नलिप्था उसे देर तक हैरत से देखती रही। फिर उसने डायरी के दूसरे सफ़ा पर चंद खाके बनाए। पहला खाका यूं था कि एक औरत जो दरअसल खुद नलिप्था थी अपने हाथ फैलाए हमें खुशामदीद कह रही थी, और एक मर्द जो हेनरी से मुशाबे था उसके दोनों नाजुक हाथ अपने हाथ में लिए मुस्कुरा रहा था। दूसरा खाका आबी घोड़े का था जो नज़ा के आलम में तालाब की सतह पर लौट रहा था, और किनारे पर एक शख्स खड़ा अपने दोनों हाथ खौफ और दहशत से आसमान की तरफ उठाए हुए था। वो शख्स रिगून था। इस मज़हका खेज खाके के बाद उसने जो खाका बनाया उसने हमारा खून मुंजमद कर दिया। खाका यूं था कि एक भट्टी रोशन थी और रिगून अपने हाथ में तिरशूल लिए उसके सहारे हमें भट्टी की तरफ धकेल रहा था। तो हमें जिंदा जलाया जाएगा, मैंने सोचा और मुझे ठंडे पसीने छूट गए। लेकिन जब उसने मुस्कुराकर एक और खाका बनाया तो मेरा खौफ कुछ कम हुआ। खाका यूं था कि एक शख्स जो सर हेनरी के अलावा और कोई ना था भट्टी के किनारे खड़ा हुआ था, और दो औरतें यकीनन नलिप्था और उसकी बहन सोराइसिस थी। हेनरी के दाएं बाएं अपने हाथों में तलवार लिए खड़ी थीं। मतलब ये वो हमें बचाने का वादा करती थीं और हमारी हिफाजत पर कमर बस्ता थीं। सोराइसिस ने, जो अपनी गहरी नज़रों से हम सबको और ख़ास कर हेनरी को देख रही थी, अपनी नाजुक गर्दन हिलाकर नलिप्था के वादे की तायद की। आखिर में उसने तलू होते हुए सूरज का खाका खींचकर जाहिर किया कि अब उसे जाना चाहिए, उससे कल फिर मुलाकात होगी। उसका मतलब समझकर हेनरी इस कदर आज़रदा खातिर हुआ कि नलिप्था ने बेख्तियार अपने दोनों हाथ उसकी तरफ बढ़ा दिए। हेनरी ने आगे बढ़कर बड़े इश्तियाक और बेताबी से उसके हाथों को चूम लिया। उसी वक्त सोराइसिस ने अपने हाथ गुड के सामने, जो उसे अपनी यकचश्मी ऐनक के पीछे से बुरी तरह से घूर रहा था, पेश किए। गुड ने बड़ी मोहब्बत से सोराइसिस के नाजुक नाजुक हाथों को अपने बेढंगे हाथों में लेकर अपने होंठ उन पर रख दिए। सोराइसिस के हाथ तो गुड के हाथ में थे, लेकिन उसकी निगाहें हेनरी पर गड़ी हुई थीं। किसी ने मुझे इस रुखसती सलाम में शामिल करना ज़रूरी न समझा, चुनाचे मैं खड़ा एक एक की सूरत तक रहा था। नलिप्था ने उस शख्स को, जो मुहाफिज दस्ते का अफसर मालूम होता था, कुछ हदायत दी जिन्हें वो बड़ी तवज्जो से सुनता रहा। अफसर को हदायत देने के बाद नलिप्था ने मुस्कुराकर इश्वा-नुमाई की शान से अपने सर को खफीफ सा झटका दिया और चंद सिपाहियों और बहन सोराइसिस को साथ लेकर कमरे से चली गई। नलिप्था के रुखसत होने के बाद वो अफसर जिसे मलका ने कुछ हदायत दी थी हमारी तरफ घूम गया और बेशुमार कौरिंशों के बाद हमें लिए हुए दरबार के कमरे से बाहर आया। कई छोटे बड़े कमरों से गुजरने के बाद हम एक निस्बतन बड़े कमरे में पहुंचे जो लातादाद शमों से बकाए नूर बना हुआ था। फर्श पर निहायत कीमती कालीन बिछे हुए थे और एक साफ़ सुथरी मेज़ पर खाना चुना हुआ था। काबों में रखे हुए ताज़ा फलों की खुशबू ने हमारी भूख और भी बढ़ा दी। खाने के साथ ही साथ मेज़ पर 3 गुलदस्तों में ताज़ा ताज़ा फूल रखे हुए थे जिनकी मस्तकुन खुशबू से कमरा महक रहा था। पानी की सुराहियों में शराब सजी मौजूद थी और हर सुराही के पास चांदी और हाथी दांत के जाम रखे हुए थे। बेदाग कपड़ों में मलबूस खूबसूरत लड़के और लड़कियां हमारी खिदमत के लिए मुस्ताद खड़े थे। और जब हम खाने की मेज़ पर बैठे तो कहीं से लीवट धीमे सुरों में बज उठा जो कि सितार की किस्म का एक साज था, और जब हम खाना खाते रहे बराबर बजता रहा। हमें यूँ मालूम होता था जैसे हम फिरदौसे गुमगश्ता में आ गए हों, लेकिन बार बार रिगून और हमें आग के सुपुर्द करने का उसका इरादा याद आ जाता और हमारा मज़ा किरकिरा कर देता। लेकिन हम इतने थके हुए थे कि खाते वक्त भी हमारी आंखें खुद ब खुद बंद हुई जा रही थीं। खा चुकने के फ़ौरन ही बाद हमने आराम करने का इरादा जाहिर किया। चुनाचे हमारे खिदमतगार हमें लिए हुए चले। वो हम में से हर एक को अलग अलग कमरा देना चाहते थे, लेकिन हमने सिर्फ 2 कमरे लेना मुनासिब समझा और इशारों से उन पर जाहिर किया कि एक एक कमरे में हम 2-2 आदमी सोना पसंद करते हैं। वो हमारा मतलब समझ गए। हमें अपनी जानों का खतरा लाहिक था। चुनाचे मजीद एहतियात के तौर पर एस्लोपोगास से कहा कि वो अपने कुल्हाड़े समेत ईवान अदालत के करीब उस ड्योढ़ी में जाकर सोए जिसमें से हमारे कमरों तक आने का रास्ता था। उससे ये भी कहा कि वो होशियार रहे और अगर कुछ गड़बड़ मालूम हो तो फ़ौरन मुतला करे। एस्लोपोगास अपना कुल्हाड़ा लिए बताई हुई जगह पर रात बसर करने चला गया। पहले कमरे में अल्फोंसे और हेनरी जाग घुसे, दूसरे में गुड और मैं ज़रा पहने ही पहने नरम गरम बिस्तर पर दराज हो गया। गुड से भी ज़रा पहने रहने को कहा। 2 ही मिनट बाद मेरे पपोटे बोझल होकर बंद हो रहे थे कि गुड की आवाज़ ने मुझे चौंका दिया। मैंने कहा क्वार्टरमैन। उसने कहा यार सच कहना, तुमने किसी और की भी ऐसी खूबसूरत आंखें देखी हैं? आंखें?
मैंने गुनूदगी के आलम में कहा, कैसी आंखें, किसकी आंखें? तुम्हें नींद में बकने की आदत है? ये तो मुझे आज ही पता चला। मैं नींद में नहीं बक रहा। मलका की आंखें और किसकी? मेरा मतलब सोराइसिस की आंखों से है। मैं नहीं जानता उसकी आंखों के बारे में, मैंने जमाही लेते हुए कहा। मुमकिन है खूबसूरत हों। मेरी आंखें बंद हो गईं। मैंने कहा, क्वार्टरमैन क्या सो गई यार? क्या मुसीबत है? मैंने कदरे तलखी से कहा। कहो क्या कहते हो? तुमने उसकी पिंडलियां देखी थीं? साख सीमी। हाय क्या साख्त। अब मेरे सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका था। मेरे बिस्तर के करीब लकड़ी का एक प्याला पड़ा हुआ था। मैंने प्याले को गुड़ की तरफ खींच मारा। प्याला खटाक से उसकी खोपड़ी पर पड़ा। मेरी इस हरकत का रद्द-ए-अमल क्या हुआ ये मैं जान ना सका और फौरन ही गहरी नींद सो गया। अब रहा गुड तो वो पता नहीं, रात भर सोराइसिस के हुस्न को सराहता रहा या फिर मुझे गालियां देता रहा, या खुदा जाने वो भी सो गया। और अब चंद घंटों के लिए इस मंजर पर पर्दा गिरता है, क्योंकि इस ड्रामे के किरदार बड़े गहरी नींद सो रही हैं। लेकिन शायद एक किरदार है जिसके लिए नींद का कहीं दूर दूर तक पता नहीं और उसकी आंखें तारा सी चमकती हैं, और ये है नलिप्था। अगर आपने शायराना तबीयत पाई है तो आप इस मंजर को इस तरह से अपने तसव्वुर में ला सकते हैं। निहायत कीमती कालीनों, नरम गरम बिस्तरों और परों वाले तकियों से सजी सजाई एक ख्वाबगाह है, जिसकी छत से लातादाद झाड़ फानूस लटक रही हैं और चारों तरफ ख्वासें मुअद्दब खड़ी हुई हैं, और उनके बीच में एक मुलायम बिस्तर या लोज पर ज़वेंदी की मलका अपनी तमाम फितना सामानियों के साथ दराज है और सोच रही है ये अजनबी लोग जिनमें से एक सर हेनरी को दिल दे बैठी है कौन है और उसकी मुमलिकत में कहाँ से आ चढ़े। उनके यहाँ आने की गर्ज क्या है? क्या सचमुच उनमें से एक उसके दिल पर कब्जा जमाने आया था? ऐसे ही और बहुत से ख्यालात उसे परेशान कर रही हैं और उन्हें जितना सुलझाने की कोशिश करती है उतने ही वो उलझ जाती हैं। लेकिन चूंकि मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, मेरी तमाम उमंगें मुर्दा हो चुकी हैं। शायरानापन भी जो किसी ज़माने में मेरे रगो रेशा में समाया हुआ था अब नहीं रहा। अब हुस्न व इश्क के मामलात से मुझे कोई सरोकार नहीं। चुनाचे इस मौका को, जबकि हर किरदार ख्वाब खरगोश में है, गनीमत जानते हुए मैं आपको ज़वेंदी के लोगों के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। ये तमाम मालूमात मैंने मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ लोगों से जस्ता जस्ता हासिल की हैं। इन सब को यकजा करके सिलसिलावार में आपके लिए पेश करता हूँ। जब से ये खित्ता आबाद हुआ तभी से इसका नाम ज़वेंदी चला आता है। जू के मायने है पीला और वेंदस खित्ता या मुल्क। इसको पीला खित्ता क्यों कहते हैं? ये वो सवाल है जिसका सही जवाब मुझे ना मिल सका। हत्ता कि यहाँ के बाशिंदे भी इसकी वजह तस्मिया से वाकिफ़ नहीं। अलबत्ता 3 वजूहात बयान की जाती हैं जो कमोबेश इत्मीनान बख्श हैं। पहली ये कि इसको पीला खित्ता इसलिए कहते हैं कि यहाँ सोना बाअफरात पाया जाता है, और सच पूछिए तो इस बारे में ज़वेंदी हकीकी एल्डोराडो है, एक ऐसा शहर तमन्ना, एक फ़र्ज़ी मुल्क, या वो शहर जहाँ सोने की बड़ी अफरात हो। फ़िलहाल इस कीमती धात को सैलाबी मिट्टी के खंडरों से हासिल किया जाता है। वो जगह जहाँ ये खड्ड है मेलोसिस से 1 दिन की मुसाफत पर वाक़ई है और हम उसका मुआयना कर चुके हैं। सैलाब ने मिट्टी ला ला कर तह दर तह इस तरह बिछा दी है कि अनगिनत छोटी छोटी टीकरियाँ सी बन गई हैं। उन्हीं टीकरियों को खोदकर सोना बरामद किया जाता है। उन टीकरियों में से 1 औंस से लेकर 6-7 पाउंड तक के कच्चे सोने के डले बआसानी हासिल किए जा सकते हैं। सोने के कानों की तलाश जारी है। कई एक तलाश की जा चुकी हैं और बाज़ जगह मैंने संगे मुर्दा की चट्टानों में सोने की धारियाँ देखी हैं। सोना ज़वेंदी में चूँकि आम है इसलिए चांदी नहायत कीमती धात समझी जाती है। हमारे मुल्क में जो कदर सोने की है वो यहाँ चांदी को हासिल है। दूसरी वजह यह बयान की जाती है कि मुल्क की एक किस्म की खुदरो घास जो बेहद लजीज और मीठी होती है और जिसकी यहाँ अफरात है, एक ख़ास मौसम में धान की बालियों की तरह पीली हो जाती है और जहाँ तक नज़र जाती है बस पीला ही पीला नज़र आता है। तीसरी वजह रवायत पर मबनी है। कहते हैं इब्तदा में जो लोग यहाँ आकर आबाद हुए उनकी रंगत पीली थी, लेकिन सादहा पुश्तों के बाद यहाँ की आबो हवा के असर से उनका रंग सफ़ेद हो गया। मैं नहीं जानता कि इस रिवायत में कहाँ तक सदाकत है। ज़वेंदी का हदूद अरबा फ्रांस जितना होगा और शक्ल अंडे जैसी लंबूतरी। ये मुल्क 3 अतराफ थोहर के घने जंगलात से घिरा हुआ है और उन जंगलात के बाद कहते हैं कि हज़ारों मील तक बेआबो गया सहरा, खौफनाक दलदलें और नाकाबिल अबूर पहाड़ चले गए हैं। मुख्तसर ये कि ज़वेंदी तारीख बर आज़म के कल्ब में एक खूबसूरत सतह मुर्तफ़ा है। सिर्फ सलौकस मेरे अंदाजे के मुताबिक सतह समुंदर से 9000 फुट की बुलंदी पर वाक़ई होगा, लेकिन मुल्क के दूसरे खित्ते इससे भी बुलंद हैं।
इसका बुलंद तरीन खित्ता मेरे ख्याल में 11,000 फुट की बुलंदी पर वाक़ है। आबो हवा जनूबी इंग्लिस्तान जैसी बेहद सर्द। फ़र्क सिर्फ इतना है कि इंग्लिस्तान में बारिश और धुंध होती है जो यहाँ नहीं होती। ज़मीन बेहद ज़रखेज़ है और हर किस्म का गल्ला, सब्जियाँ और फल बाअफ़रात पैदा होते हैं। घने जंगलात से इमारती लकड़ी भी काफ़ी तादाद में मिल जाती है। ज़ोवेंदी के इस खित्ते में जो निस्बतन बंजर है, मुख्तलिफ इक़साम के गन्नों की काश्त की जाती है। कोयले की भी कसरत है और मामूली सी खुदाई के बाद टनों कोयला मिल जाता है। संगे मरमर भी 2 किस्म का पाया जाता है, सफ़ेद और स्याह। दोनों किस्म का संगे मरमर हस्बे ज़रूरत मिल जाता है। यही हाल सोना, चांदी और दीगर धात का है। चांदी यहाँ कामयाब है और ये उस पहाड़ी सिलसिले से जो ज़ोवेंदी के शुमाल में वाक़ है हासिल की जाती है। ज़ोवेंदी अपने दामन में लातादाद खूबसूरत मनाजिर लिए हुए है। उन मनाजिर में वो सिलसिला कोह भी शामिल है, जिनमें से एक मगरिब की सिमत में नाकाबिले अबूर खारदार जंगल के किनारे पर वाक़ है। दूसरा सिलसिला मुल्क में घुस आया है और मेलोसिस से सिर्फ 80 मील के फासले पर वाक़ है। मेलोसिस में उन पहाड़ों की बर्फ़पोश चोटियाँ बखूबी नज़र आती हैं। 3 बड़े तालाब हैं, जिनमें से सबसे बड़ा वो है जहाँ हम ज़ेरे ज़मीन नदी से निकल कर आए थे। उस तालाब का नाम भी उस किनारे पर आबाद शहर की वजह से मेलोसिस ही पड़ गया है और ये 200 मुरब्बा मील के घेरे में फैला हुआ है। छोटे छोटे तालाबों का, जिनमें अक्सर खारे पानी के हैं, उनका तो कोई शुमार ही नहीं। मुल्क की आबादी काफ़ी घनी है। अंदाज़ा है कि 12 लाख पूरा मुल्क ज़राती है और आबादी मुहज़्ज़ब दुनिया की तरह तबकों में बटी हुई है। उमरा मुतवस्सित तबका, जिनमें ज़्यादातर ताजिर और फ़ौजी अफसर शामिल हैं, और किसानों का तबका ज़्यादा तादाद किसानों की है जो अपने आका की ज़मीन जोतते बोते हैं और उसी पर उनकी ज़िंदगी का इन्हसार है। उमरा मुल्क के खुशहाल तरीन लोग हैं और उनकी रंगत बिल्कुल सफ़ेद है। उनके मुकाबले में मुतवस्सित तबका के लोगों और किसानों का रंग ज़रा गहरा है, जिसे गंदमी कहना मुनासिब होगा, लेकिन वो अफ्रीका के असली बाशिंदों से बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। ना तो उनमें अफ्रीका के बाशिंदों के से रस्म और रिवाज पाए जाते हैं और ना उनके आदात व इतवार। अब सवाल पैदा होता है कि जब ज़ोवेंदी लोग अफ्रीका के असली बाशिंदे नहीं हैं तो यहाँ कहाँ से आ गए? इस सवाल का जवाब मैं बावजूद कोशिश के ना पा सका। हत्ता कि उन सदियों पुराने मलफूजात से भी जो ज़ोवेंदी में मौजूद हैं कोई सुराग नहीं मिलता। एक पुराने रोज़नामचा या तारीख में सिर्फ इस कदर मरकूम है कि कई हज़ार साल पहले सफ़ेद फामों का एक काफ़िला इस तरफ से गुजरा था। काफ़िले के चंद लोग इसी जगह बस गए और काफ़िला आगे बढ़ गया, लेकिन ये रवायत बहुत ज़ईफ़ है और इस पर किसी सूरत एतबार नहीं किया जा सकता। मुख्तसर ये कि ज़ोवेंदी लोगों की असलियत वक्त की धुंध में रूपोश है और उसे कोई नहीं पा सकता। हाँ, अमारात में मिस्र कदीम के फ़न तामीर की झलक पाई जाती है, लेकिन इससे भी कोई खातिर ख्वाह नतीजा बरामद नहीं होता। ज़ोवेंदी फ़न तामीर सिर्फ 800 साल पुराना है और इस पर मिस्र कदीम का असर होना एक इत्तफ़ाक़ी अमर है। फिर ज़ोवेंदी लोगों के ख़त्तो खाल और उनकी आदात व अतवार बहुत कुछ यहूदियों से मिलते जुलते हैं, लेकिन उससे ये ख्याल नहीं करना चाहिए कि ये लोग नस्लन यहूदी हैं। अगर वाकई ये लोग यहूदी हैं तो फिर ये बात करीने क़यास नहीं कि उन्होंने इतनी जल्द अपने मज़हब को भुला दिया हो। इन लोगों के बारे में मेरा अपना भी एक नज़रिया है। अफ्रीका के मशरक़ी साहिल पर मेरी मुलाकात चंद अरबों से हुई थी। उन्होंने मुझसे एक रवायत बयान की कि 2000 साल कबल फ़ारस में कुछ गड़बड़ हो गई थी और पारसियों का एक बहुत बड़ा गिरोह अपने वतन से चलकर वो शायर के मुकाम पर आया और फिर किसी और तरफ के इरादे से वहाँ से रवाना हुआ, लेकिन बाद मुखालिफ ने उन्हें अफ्रीका पहुँचा दिया। अफ्रीका में बकौल अरबों के उन लोगों की मुठभेड़ अरबों के एक जत्थे से हो गई। ये अरब ताजिर थे और अफ्रीका के साहिल पर नौ आबादी कायम कर रहे थे। एक मुद्दत तक अरबों और पारसियों में झड़पें होती रहीं। आखिरकार आतिश परस्त तंग आकर अफ्रीका के क्लब की तरफ निकल गई। तब से लेकर आज तक फिर उनका कोई पता न चला कि कहाँ गए और उनके साथ क्या वाक़या पेश आया। हो सकता है कि ज़ोवेंदी लोग उन्हीं पारसियों की नस्ल से हों। बहरहाल ये मेरी अपनी राय है। ज़ोवेंदी के लोग ज़्यादातर काश्तकार हैं, इसलिए बेहद अमन पसंद वाक़या हुए हैं। इसके अलावा कुदरत खुद इस खूबसूरत मुल्क की हिफाजत कर रही है। ज़ोवेंदी के चारों तरफ नाकाबिले अबूर पहाड़ और जंगलात वाक़ई हैं, जिनकी वजह से ना तो ये किसी और मुल्क की तलाश में निकल सकते हैं और ना ही कोई और इन पर हमलावर हो सकता है। अलबत्ता खाना जंगी की वजह से ये मुल्क भी महफूज नहीं। बड़ी बड़ी मार्के की खाना जंगियाँ होती हैं और ज़ोवेंदी लोग दीवानी बिल्लियों की तरह आपस में ही एक दूसरे को नोचते खसोटते हैं।
इससे एक फ़ायदा तो ये होता है कि मुल्क की आबादी बढ़ने नहीं पाती, और दूसरा फ़ायदा ये होता है कि खाना जंगियों में उलझे रहने के सबब उमरा और अवाम इतनी कुव्वत हासिल नहीं कर पाते कि हुकूमत का तख्ता उलटने का ख्वाब देखें। चुनाचे इस मुल्क में सदियों से शहनशाहियत चली आ रही है और कोई इसकी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देख सकता, लेकिन बादशाह नाम ही का होता है, वरना हुकूमत के तमाम शोबों पर मोहब्बत के पुजारी और उमरा छाए हुए हैं। वो अपनी मनमानी करते हैं और बादशाह कान तक नहीं हिला सकता। अगर बादशाह को कोई हुक्म जारी करना हो या कोई नया कानून राइज करना हो तो उसका हुक्म या कानून मोहब्बत के पुजारियों और उमरा की मजलिस शूरा के सामने पेश किया जाता है और वो उसमें ज़रूरी रद्दबदल करने के बाद राइज करते हैं। मुल्क का निज़ाम जागीरदाराना है, गुलामी का हर चंद के कहीं नामो निशान नहीं। फिर भी कई उमरा खुद मुख्तार हो चुके हैं, लेकिन उनका ताल्लुक मरकज़ी हुकूमत से बदस्तूर कायम है। लेकिन अपनी जागीर में उनका सिक्का राइज है। वो मुजरिमों को सज़ा भी दे सकते हैं और जब चाहते हैं अपनी ही मर्जी से सुलह कर लेते हैं। हुकूमत उनके मामलात में दखल नहीं देती। जोवेंदी में भी बादशाह गर मौजूद हैं और पिछले 8000 साल के दरमियान 8 अलग अलग सिलसिला के बादशाह जोवेंदी के तख्त पर बैठ चुके हैं। हर सिलसिले का पहला बादशाह कोई सरकारी ओहदेदार या उमरा में से होता है जो रफ्ता रफ्ता तरक्की करके तख्तो ताज पर काबिज हो जाता है। जब हम जोवेंदी में आए हैं तो मुल्क में हर तरफ अमन कायम था। खाना जंगियाँ ख़त्म हो चुकी थीं। शाह मरहूम यानी नलिप्था का बाप बड़े जलाल और दबदबे का बादशाह था। उसने अपनी खुदादाद काबिलियत से उमरा और पुजारियों का जोर बिल्कुल तोड़ दिया। हमारे जोवेंदी पहुंचने से 2 ही साल कबल उस बादशाह का इंतकाल हुआ था। असूली तौर पर बादशाह की मौत के बाद दोनों लड़कियों में से किसी एक को तख्तो ताज मिलना चाहिए था, लेकिन इस सूरत में कभी ख़त्म ना होने वाली खाना जंगी का सिलसिला शुरू हो जाता। चुनाचे 2 बहनें बैक वक्त तख्तो ताज की वारिस करार दी गईं, लेकिन बाज़ लोगों का ख्याल है कि ये इकदाम गैर इत्मीनान बख्श है और जल्द या बदेर इसके बुरे नताइज ज़रूर बरामद होंगे। जब दोनों बहनें तख्त नशीन हुईं तो उमरा ने दोनों में से किसी एक को अपनी ज़ौजियत में लेने के लिए साजिशों के जाल फैला दिए और मुल्क में एक सिरे से दूसरे सिरे तक एक आम परेशानी और अबतरी की लहर दौड़ गई और लोग इस ख्याल से दहशत ज़दा रहने लगे कि उमरा की चालबाजियाँ एक रोज़ ज़रूर रंग लाएंगी और मुल्क के तूलो अर्ज़ में खून की नदियाँ बह जाएंगी। जब हम यहाँ पहुँचे हैं तो मुल्क इस इंतशार के दौर से गुजर रहा था। अब मैं जोवेंदी लोगों के मज़हब के बारे में कुछ कहूँगा। जैसा कि मैं कह चुका हूँ कि वो लोग सूरज परस्त थे। गहवारे से लेकर कब्र के तारीख गड्ढे में दफन होने तक हर शख्स सूरज देवता की पूजा किया करता। इस एक मज़हब के अलावा मुल्क के तूलो अर्ज़ में किसी और मज़हब का पता नहीं था। जब किसी के यहाँ बच्चा पैदा होता है तो वो उसे लेकर मुअब्बद में हाजिर होता है। पुजारी बच्चे को कुर्बानगाह पर रख देते हैं और जब सूरज की किरणें मुअब्बद की छत में बने हुए सुराखों से गुजर कर बच्चे पर पड़ती हैं तो वो समझ लेते हैं कि सूरज देवता ने इसकी रूह को पाक को साफ करके अपने मज़हब में दाखिल कर लिया। बच्चा जब चलने लगता है तो वालिदैन बिला नागा दिन में 2 बार सूरज के तुलुओ ग्रूब का नज़ारा उसे कराते हैं और ये बात उसके जहन नशीन कर देते हैं कि यही उसका खुदाए खबीर है। इसी की परस्तिश करो और इसी से मुरादें मांगो। चुनाचे बच्चा दिन में 2 बार सूरज के सामने सर झुकाता है और जब वो बच्चा चलने फिरने के काबिल हो जाता है तो माँ का दामन पकड़े मुकामी मुअब्बद में पूजा के लिए जाता है और जब सूरज की किरणें मुअब्बद में जलती हुई आग पर गिरती हैं तो तमाम लोग सजदे में चले जाते हैं। बच्चा ये देखता है और फिर वो भी सजदे में गिर जाता है। फिर वो पुजारियों के गीत सुनता है जो सूरज की देवता की बड़ाई और उसकी लाफानी कुव्वतें बयान करते हैं। इसके बाद बिगल चिल्ला उठते हैं और कुर्बानगाह के कदमों में बनी हुई भट्टी से शोले बुलंद होते हैं और कुर्बानी के जानवरों को जिंदा उस भट्टी में झोंक दिया जाता है। बच्चा ये सब कुछ देखता है और उसे समझने की कोशिश करता है और फिर एक दिन वो आता है कि वही बच्चा इस मंदिर में आता है और पुजारी चंद रसूमात के बाद फैसला करते हैं कि वो बालिग है। फिर वो अपनी दुल्हन का हाथ थामे इसी कुर्बानगाह के सामने आता है और उसे अपनी ज़ौजियत में लेना कबूल करता है और अगर उन दोनों में बनती नहीं तो वो इसी कुर्बानगाह के सामने अपनी बीवी को तलाक देता है। ज़िंदगी यूं ही मनाजिल तय करती जाती है, यहाँ तक कि आखिरी मंजिल भी आ पहुँचती है और एक बार फिर वह इस मुअब्बद में हाजिर होता है, बल्कि यूं कहिए कि लाया जाता है। वही बच्चा जो इस मुअब्बद में अपनी माँ का दामन पकड़े दाखिल हुआ था, लोगों के कंधों पर चढ़कर आखिरी बार मुअब्बद में आता है। उसकी कमर खमीदा होती है, चेहरे पर झुर्रियों का जाल होता है, बाल बर्फ़ जैसे सफ़ेद होते हैं और जिस्म बेजान। फिर कई एक मजहबी रसूमात अदा होती हैं और तब मंदिर के पुजारी फतवा देते हैं कि वाकई वह मर चुका। फिर उसके ताबूत को उस कुर्बानगाह पर रख दिया जाता है जिसके कदमों में भट्टी रोशन होती है।
उस भट्टी और कुर्बानगाह पर दिन के एक खास वक्त में सूरज की शुआएं ज़रूर पड़ती हैं। सूरज की शुआएं छत के सुराखों से गुजरकर कुर्बानगाह और उस पर रखे हुए ताबूत को रोशन कर देती हैं। चंद मखसूस कीलों को दबाया या खुदा जाने खींचा जाता है, कुर्बानगाह के ऊपर का तख्ता सरक जाता है और ताबूत नीचे भट्टी में जा पड़ता है और देखते ही देखते शोले उसे निगल लेते हैं और ये उस बच्चे का इंजाम होता है जो अपनी माँ का दामन पकड़े इस मोहब्बत में आया था और अपनी तोतली ज़ुबान में सूरज देवता की अजमत के गीत गाए थे। मोहब्बत के पुजारी शादी नहीं करते, लेकिन नौजवानों की एक पूरी जमात हर वक्त उनकी खिदमत के लिए मौजूद रहती है। उन नौजवानों को उनके वालिदैन मोहब्बत के नाम वक्फ कर देती हैं और उनकी सरपरस्ती हुकूमत करती है। पेशवा की नामजदगी हुकूमत करती है, लेकिन जब कोई शख्स इस ओहदे पर पहुंच जाता है तो फिर कोई ताकत उसे बरतरफ नहीं कर सकती। ये तो नहीं कहा जा सकता कि पेशवा आज़म सही मायनों में तमाम मुल्क पर हुकूमत करता है, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि उसके इख्तियारात बहुत वसी होते हैं। माली, फौजदारी और मुआशरती मुकदमात में पेशवा आज़म का फ़ैसला हर्फ आखिर होता है। मुल्क में हज़ारों मुअब्बद हैं और हर मुअब्बद में अनगिनत पुजारी। ये तमाम मुअब्बद और उसके पुजारी पेशवा आज़म के मातहत होते हैं, जो रेगून के नाम से पुकारा जाता है और मेलोसिस के सबसे बड़े मुअब्बद में मुकीम होता है। अगर किसी को फरियाद करनी होती है तो वो मुकामी मुअब्बद के आला पुजारी को तहरीर करके दे देता है। पुजारी उसे शहर के गवर्नर तक पहुंचाता है। वहां से बादशाह वक्त के हजूर आती है और बादशाह उसे पेशवा आज़म के हजूर पेश कर देता है और रेगून जैसा मुनासिब समझता है वैसा फ़ैसला देता है। किसी को हुकूक से महरूम कर देना भी रेगून के इख्तियार में है, और जिस मुल्क में सिर्फ एक ही मज़हब हो वहाँ यह हथियार बड़ा कारगर साबित होता है। सूरज देवता के पुजारियों के इख्तियारात, जैसा कि मैं कह चुका हूँ, बेहद वसी होते हैं, लेकिन इसे पुजारियों की शराफत कह लीजिए कि वो अपने इख्तियारात से नाजायज़ फ़ायदा नहीं उठाते, इस खौफ से कि कहीं ऐसा ना हो कि अवाम उनके मुजालिम से तंग आकर उनके खिलाफ उठ जाएं और अपनी गर्दन में वो तौक उतार फेंकें जो उन्होंने मज़हब का नाम लेकर उनकी गर्दन में डाल रखे हैं। लोगों के दिलों पर उनके असर का दूसरा सबब है उनका इल्म और नजूम में दस्तरस। अपने इस इल्म का सहारा लेकर वो अजीबोगरीब पेशगोइयाँ करते हैं, लोगों के दिलों पर अपना सिक्का जमाते हैं। ज़ोवेंदी में तालीम आम नहीं, उम्रा में से भी सिर्फ गिनती के ही लोग पढ़ना जानते हैं, इसलिए आम लोगों के दिलों पर उनका रोब कायम हो जाता है और वह पुजारियों के सामने एहतराम से गर्दनें झुका देते हैं कि ये लोग आलिम व फाजिल हैं। हुकूमत के कवानीन बड़े माकूल और एक हद तक बड़े नरम हैं, लेकिन कई एक हमारी मुहज़्ज़ब दुनिया के कवानीन से मुख्तलिफ। मसलन हमारी दुनिया में जायदाद वगैरह पर ज़्यादा ज़ोर दिया जाता है। अगर एक शख्स किसी की जायदाद गज़ब कर ले तो उसे सख्त से सख्त सज़ा दी जाती है, लेकिन अगर वही शख्स अपनी बीवी को मारते मारते अधमुआ कर दे या अपने बच्चों की तरफ खुद गर्जी के पेश नज़र कोई ध्यान ना दे तो हुकूमत उसकी तरफ ध्यान नहीं देती, और अगर देती भी है तो बहुत कम। ज़ोवेंदी में ये बात नहीं, गलत या सही तौर पर ये लोग जायदाद की निस्बत इंसान और उसके मसाइब की तरफ ज़्यादा ध्यान देते हैं। यहाँ दौलत और जायदाद की कोई अहमियत नहीं, लोग इसकी खातिर आपस में खून खराबे नहीं करते। यहाँ कातिल और गद्दार की सज़ा मौत है, यतीमों और बेवाओं की हक तलफी, किसी मुकद्दस शय की बेहुरमती और मुल्क छोड़कर हमेशा के लिए कहीं जाने का इरादा करना जो बेहुरमती के मुतरादिफ गुनाह समझा जाता है। ऐसी जुर्मों की सज़ा एक जैसी और कदरे ज़ालिमाना है। मुजरिम को मोहब्बत की कुर्बान गाहों में से किसी एक के नीचे जलती हुई भट्टी में फेंक दिया जाता है। दूसरे खिलाफे कानून कामों के लिए, जिनमें सुस्ती और काहली का जुर्म भी शामिल है, बड़ी दिलचस्प सज़ा दी जाती है। मुजरिम को किसी ज़ेरे तामीर सरकारी इमारत पर मजदूरी करने पर मजबूर किया जाता है। अगर उसका जुर्म मामूली हो तो उसे उजरत भी मिलती है, वरना वो मुफ्त ही कड़ी से कड़ी मेहनत करता है जब तक कि उसकी मियाद पूरी नहीं हो जाती या फिर इमारत तैयार हो जाती है। ज़ोवेंदी में आम तौर से हर शख्स कसीरुल अज़दवाज होता है, लेकिन निचले तबके में ज़्यादातर लोग सिर्फ एक ही बीवी पर कनायत करते हैं। अगर किसी शख्स की कई बीवियां हों तो कानूनी तौर पर उसे हर बीवी को एक अलहदा मकान देना पड़ता है। पहली बीवी असली बीवी होती है और उससे जो औलाद होती है बाप से, और दूसरी बीवियों की औलाद माँ से मंसूब की जाती है, लेकिन उससे बच्चों या उसकी माँओं की शराफत और आला निस्बती पर कोई दाग नहीं आता। पहली बीवी अगर चाहे तो निकाह ख्वानी के वक्त अपने शौहर के सामने यह शर्त पेश कर सकती है कि वो उसकी ज़िंदगी में दूसरी शादी नहीं करेगा, लेकिन ऐसा बहुत कम होता है क्योंकि ज़ोवेंदी की औरतें खुद चाहती हैं कि उनके शौहर दूसरी शादियां करें, क्योंकि इससे पहली बीवी की अहमियत बढ़ जाती है और उसे एक छोटा मोटा राज मिल जाता है। शौहर की दूसरी बीवियों और बच्चों पर
पहली बीवी का हुक्म चलता है और वह तमाम की तमाम उसके इख्तियार में होती हैं। शादी को एक अहम तरीन समाजी रिश्ता तस्लीम किया जाता है और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पैदा करने पर जोर दिया जाता है। जिसके जितने ज़्यादा बच्चे होंगे उतनी ही उसकी इज्जत होगी। अगर मियाँ बीवी के ताल्लुकात कशीदा हो जाएं तो वह बाहम मुत्तफिक होकर तलाक हासिल कर सकते हैं। तलाक की तकरीब भी बड़ी धूमधाम से मनाई जाती है। दोनों की शादी की भी रसूमात एक बार फिर अदा करनी पड़ती हैं और फिर पुजारी ऐलान कर देता है कि तलाक हो गई। ज़ोवेंदी लोग सादा लोग खुश मिजाज, रहम दिल और मेहमान नवाज होते हैं। ना तो ये लोग बड़े ताजिर हैं और ना ही इन्हें दौलत की हवस है। हर शख्स उतनी ही दौलत पर काने होता है जिससे अपनी बीवी बच्चों का पेट पाल सके। इसलिए यहाँ कंजूस नहीं और ना ही कोई दौलत जमा करता है। ये लोग बेहद कदामत पसंद वाक़े हुए हैं और अपनी रसूमात और लिबास वगैरह में कोई तब्दीली गवारा नहीं कर सकते। बड़े सिक्कों में चांदी के मुख्तलिफ वज़न के मुरब्बा टुकड़े होते हैं और छोटे सिक्के सोने के होते हैं, क्योंकि सोना यहाँ बाअफराद मिलता है। लेकिन सोने से नाइंसाफ़ी नहीं की जाती, उससे लातादाद जेवरात बनाए जाते हैं। और सच पूछिए तो यहाँ की औरतों के हसीन और मुतनासिब जिस्म पर यह पीली धात बड़ी भली मालूम होती है। सिक्कों का इस्तेमाल बहुत कम है। ज़माने कदीम की तरह यहाँ भी व्यापार चीज़ों के रद्दोबदल से होता है। काश्तकारी के अलावा यहाँ गाय और घोड़े की आला नस्ल पैदा करने की तरफ भी बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। ज़ोवेंदी में ऐसे खूबसूरत और मजबूत घोड़े मेरी नज़र से गुजरे कि शायद ही दुनिया के किसी और हिस्से में ऐसे घोड़े हों। मुल्क की तमाम ज़मीन की मालिक हुकूमत है। हुकूमत के मातहत जागीरदारों के बाद किसान और किसानों के मातहत छोटे छोटे काश्तकार जो ज़मीन जोतते बोते हैं। फसल में से निसफ हिस्सा उन किसानों और काश्तकारों का होता है और निसफ जागीरदारों का। लेकिन मुल्क की तमाम ज़मीन का मालिक बराह रास्त शहंशाह ही होता है और वह जिसको चाहता है और जब तक चाहता है ज़मीन दे देता है और जब चाहता है वापस लेकर किसी और को दे देता है। हर शख्स की आमदनी में से तीसरा हिस्सा हुकूमत का होता है। उसके एक हिस्से में से जो बचता है 5% हिस्सा पुजारियों का होता है। ये बड़ा जालिमाना टैक्स है। बरखिलाफ इसके कि दूसरी तरफ यूँ भी है कि अचानक कोई शख्स मुफलिस का लाश हो जाए तो हुकूमत उस वक्त तक उसकी माली मदद करती रहती है जब तक कि वो कुछ पूंजी जमा नहीं कर लेता या कहीं मुलाजिम नहीं हो जाता। हुकूमत के मातहत 20,000 सिपाही और मुहाफिज हर वक्त मौजूद रहते हैं। पुजारी अवाम की आमदनी में से जो 5% हिस्से लेते हैं उसके इवज़ मजहबी रसूमात अदा करते हैं, इबादत कराते हैं और मुक़द्दस जानवरों की देखभाल करते हैं। मदरसे भी वही चलाते हैं और बच्चों को वही तालीम दी जाती है जिसे पेशवाए आज़म मुनासिब करार दे। कई मुअब्बदों की जागीर भी है लेकिन उनके मालिक पेशवा नहीं बल्कि हुकूमत है। अब वो सवाल दरपेश है जिसका जवाब देने के लिए मुझे काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। यानी ज़ोवेंदी लोग तहजीब याफ्ता हैं या वैशी? कभी तो मैं सोचता हूँ कि ये वाकई तहजीब याफ्ता हैं और कभी ये सोचने पर मजबूर हो जाता हूँ कि नहीं, ये लोग वैशी हैं। कई एक फ़नून लतीफ़ा में उन्होंने काफ़ी से ज़्यादा तरक्की कर ली है। मसलन फ़न तामीर और बुत साजी को ही लीजिए। मुअख्खर अल ज़िक्र का मुकाबला दुनिया का कोई मुल्क नहीं कर सकता। अलबत्ता फ़न तामीर में मिस्र कदीम की झलक पाई जाती है। दूसरी तरफ ये लोग कांच और चीनी के बर्तनों के इस्तेमाल से नावाकिफ़ थे। उनके बर्तन लकड़ी के ही होते थे। हेनरी को इस फ़न में कुछ दस्तरस हासिल है, चुनाचे उसने उन्हें कांच और चीनी के बर्तन बनाने सिखा दिए। धूप घड़ी उनकी जदीद इजादों में से है, चुनाचे हमारी मशीनी घड़ियों को देखकर उन्हें बेहद हैरत हुई। ये लोग बिजली, भाप और बारूद वगैरह से वाकिफ़ नहीं और ना ही यहाँ छापा खाने और अखबार हैं, चुनाचे उनकी मुश्किलात बहुत कम हैं। लेकिन हम मुहज़्ज़ब इंसानों पर किसी का ये मनकूला सादिक आता है कि जो शख्स अपने दायरा इल्म को जितना वसी करता है उतनी ही उसकी मुश्किलात और फ़िक्रें बढ़ती जाती हैं। अब रहा इनके मज़हब का सवाल तो जाहिर है कि इनके पास इल्म की दौलत नहीं कि हर चीज़ को सच्चाई की कसौटी पर परखें। चुनाचे वो सूरज के सामने झुक गए जो अजराम फ़ल्की में सबसे बड़ा और आतिशी गोला है। वो इसे तमाम दुनिया और मखलूक का बाप समझते हैं। लेकिन कई एक लोगों के दिलों में ऐसे शकूक गुजरते हैं कि सूरज तन्हा वसीउल शान नहीं है। लेकिन ऐसे लोग भी जल्द उन शकूक से गुलू खुलासी कर लेते हैं। मुख्तसर ये कि वो जिस चीज़ की हुर्मत के कायल हैं और जिसकी तारीफ़ करते हैं वो यही आतिशी गोला सूरज ही है। कोई और खुदा या उसका ख्याल इनके दिल में जगह नहीं पा सकता। चंद लोग हयात बाद अल मौत के भी कायल हैं, ख़ास तौर पर नलिप्था। चुनाचे मैं कह सकता हूँ कि मुतमद्दन लोग ना तो सूरज की परस्तिश कर सकते हैं और ना ही हर चीज़ से उल्टे सीधे शगुन ले सकते हैं।
इन बातों की रोशनी में आप चाहें तो इन्हें मुहज्जब समझ लें या वैशी, मैं कोई फैसला नहीं कर सकता। अब सिर्फ 2 चीज़ें बाकी रह जाती हैं, यानी ज़ुबान और उनका रस्मुल ख़त। ज़ुबान के बारे में सिर्फ इतना कह देना काफ़ी समझता हूँ कि वो बेहद शीरीं और लचकदार है, जो बकौल हेनरी के जदीद यूनानी ज़ुबान से मिलती जुलती है। मैं हेनरी के कौल से मुत्तफिक नहीं। यूनानी ज़ुबान के बरखिलाफ़ ज़ोवेंदी ज़ुबान के तवील अल्फाज का ज़रा सा मतलब होता है, जिसे ज़ोवेंदी लोग बड़ी आसानी से अदा करते हैं। रस्मुल ख़त के कुछ अल्फाज BED वगैरह, उनका रस्मुल ख़त बेहद उलझा हुआ और पेचीदा है, लेकिन चूंकि उन्हें नावल, अफसाने और तनकीद वगैरह नहीं लिखनी होती, सिर्फ कारोबार का हिसाब रखना होता है, इसलिए ये उलझा हुआ रस्मुल ख़त चल जाता है। हरूफ तहज्जी की तादाद 22 है, जो उनके मुख्तसर से काम के लिए काफ़ी से ज़्यादा है। तो ये हैं ज़ोवेंदी के बारे में वो मालूमात जो मैंने मुख्तलिफ औकात में हासिल की।